उसमें क्या होता है कि हमारा नहीं हो रहा है फिर से रिकॉर्डिंग। तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। स्टार्टेड। हाँ हाँ। स्टार्टेड। यस यस राइट। जैसे हम टी आर कनेक्ट Okay, कर। we will see this uh, after our session. Okay, session at the end of session, सब होने के बाद. We are giving here full name. अगर टीआर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे पैकेज देना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा. Then it will ask you to TR. If you are saving in local objects, then it will not ask you about the TR. Okay. So अभी मैं यहाँ पे पैकेज दे रहा हूँ. So it is asking me TR. If I want to save in the same TR which already exists, then I will select this. Okay. If I don't want to save in the existing TR, मुझे अलग बनाना है ये कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट के लिए, then I will go here and create new one and assign this object to that TR. Okay, but I'm using the same TR for it. So here I will today we will see control break statements. So control break statements में क्या क्या आता है? At new, then at first. Okay, उसके बाद में end at, ये मैंडेटरी है. और फिर उसके बाद में at end of बोल के आता है, ये कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट है. और एक on change of. This statement is now absolute. We are not using. Instead of this, we are using at end of. Okay. तो इसका एक प्री रिक्विजिट है कि these statements we are using only in loops. Outside loops, it does not work. And another one prerequisite है, before using these statements into the loop, the internal table must sort. Okay, जिस पे हमने internal table जिस loop पे लगाया है, that should be sorted. Otherwise, it will not work. So we will select some data from the KPA table. So here I will use the inline declaration instead of creating types. EBLP. Then में fields देखते हैं. KPO, which is for purchase line item. Then इसमें से हम लेते material number. Okay, MENGE. Okay, so for now that's enough. After that, into table at the rate data LT underscore KPO. Sorry, I missed to write here from KPO.
अप टू हम 10 रोज ही लेते हैं अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद में तो नाउ वी हैव डेटा ऑफ एल टी ई के पी ओ। अभी मुझे इस पे लूप लगाना है। Here also I am using inline declaration. तो इसको एक डीबग लगा के देखते हैं हम। ठीक, इसमें 10 रिकॉर्ड्स में ये देखो, ये जो है फर्स्ट EBLN, ओके, ये तो एक ही डॉक्यूमेंट है। बट यहाँ पे वन वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रिकॉर्ड्स तो वही है, वन वाले, ओके। सो समटाइम्स क्या होता है कि अभी मैं EBLN पे दिखा दूँ, कभी कभी क्या होता है कि बेस्ड ऑन परचेस डॉक्यूमेंट एंड line item जो ये है, based on this we have to do some calculations, or sometimes if the requirement is नहीं मुझे सिर्फ परचेस डॉक्यूमेंट पे ही चाहिए, so then you have to use this one, but for this we have to sort the purchase document and line item. So now how it is printing we will see. mm, PL demo core output think new right. I'm this using just only for um to show the uh, demo only for training, but this is we are not using this uh, this class and this approach while creating the actual report, okay, just it is for test purpose. Right, text, ये ट्रेनिंग सेशन में ही यूज करते हैं ऐसे क्लासेस, जस्ट टू शो द आउटपुट ओनली। हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट से पहले, सॉरी, बिफोर कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट। देन आउट, राइट डेटा LT_EKPO जिसका हम डिस्प्ले कर रहे हैं डेटा, देन डिस्प्ले, okay, so we'll see what it will produce, see, okay, इस पे कुछ नहीं आता, आप देख रहे हो, जस्ट प्रिंट कर रहा है, सो फॉर जस्ट ट्रेनिंग पर्पज ये ऐसे यूज करते हैं टू डिस्प्ले ओनली। सो इट इज हैविंग बिफोर कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट, ये 10 रिकॉर्ड जो हमने डिबग में देखा था, ओके, दिस
सो आफ्टर कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है वो वी विल सी. ओके, आई एम यूजिंग हियर स्टेटमेंट at end of. Okay, at end of EBLN, end at. So this block is statement, control break statement at end of EBLN. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये EBLN जहाँ पे एंड होता है, सम अभी 10 रिकॉर्ड्स लिया, ऐसे बहुत रिकॉर्ड रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे. ठीक है, ये जहाँ पे एंड होगा इसके बाद में स्टार्ट होगा 450002. तो मुझे इसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मुझे इसका एक लाइन में ये टोटल चाहिए मुझे. So this technique we are using for that. So at end of abelian. So इसके लिए at end of abelian मतलब वो सब sort में होना चाहिए. अगर ये sort नहीं होता, ये एक यहाँ पे दो है, तीन है, फिर ये एक यहाँ पे है, फिर चार पांच, फिर एक यहाँ पे है, ऐसा रहेगा तो उसको एंड नहीं मिलेगा, इधर ही एंड कर देगा स्टार्ट में जहाँ पे उसको एक मिल गया है. तो यहीं पे जितना उसको मिल रहा है उसका टोटल करके वो दिखा देगा. तो सो दैट वी नीड दिस शुड बी इन सॉर्ट, तो एक साथ सॉर्ट में आएगा, फिर उसका एंड जहां पे मिलेगा उसको वो टोटल कर देगा. ठीक है, यहाँ पे हम एट एंड ऑफ EBLN इसमें यही हम एक तो यही हम वर्क एरिया यूज कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा इंटरनल टेबल बना सकते हैं इसके लिए और उसमें हम रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, here already we have declared this, so I will write here one more statement for data. या फिर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि वहीं पे लिखना. डेटा LT sum type, sorry, like, because this is not type, this is already declared, so I will write like LT EKPO. तो मैंने सेम ऐसा ही एक और एक LT sum बनाया है, और इसका मैं एक स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ, LS sum like LT underscore like line of LT underscore EKPO. फिर यहाँ पे हमको उस इंटरनल टेबल को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमको किस बेसिस पे उसको सम करना है. सो हियर आई एम स्पेसिफाइंग सॉर्ट LT EKPO बाय EBLN एंड EBLP, बट मुझे यहाँ पे EBLN के बेसिस पे चाहिए सिर्फ. EBELN, yeah. So till now there is no errors. Okay. अभी मुझे जो टोटल करना है वो मैं इस ब्लॉक के बाहर करूंगा, और जब वो टोटल एट द एंड ऑफ EBLN हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट है वन वाला, तो उस टाइम पे इस कंट्रोल इसके अंदर आएगा. अदरवाइज वो कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा तब तक जब तक उसका एंड नहीं आता है. ठीक है, देखो. सो फॉर दैट वी विल डिक्लेयर वन वेरिएबल हियर आल्सो टू समेश फॉर द समेशन. डेटा LV अंडरस्कोर सम, और यू कैन से MENG, जो क्वांटिटी का हम कर रहे हैं, MENG अंडरस्कोर D. ये डेटा एलिमेंट है, सो दैट वी आर स्पेसिफाइंग MENG अंडरस्कोर D. हियर आई एम यूजिंग LV अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू LV अंडरस्कोर सम. अभी तो इसमें कुछ भी नहीं इनिशियल है, सो हियर इसमें भी इनिशियल है, कुछ भी नहीं है वैल्यू, यही हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस LS EKPO MENG, इसमें है क्वांटिटी. तो ये क्या करेगा, लूप में घूमेगा जब,
फर्स्ट इसको 500 मिला, तो इसमें 500 डाल दिया, इसमें तो कुछ नहीं है, 0 है, 0 प्लस 500, 500। नेक्स्ट टाइम आ गया, इसमें उसको 500 मिला है ऑलरेडी, 500 प्लस 500, 1000 इसमें रख दिया। फिर नेक्स्ट टाइम आ गया, 1000 प्लस 500, 1500। ऐसा जितनी बार वो डॉक्यूमेंट है EBLN, उतनी बार वो घूमेगा, और एट द एंड जहाँ पे उसको एंड मिलेगा वो इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाया हमने ls sum, तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं, मूव करस्पॉन्डिंग ls अंडरस्कोर ekpo टू ls sum। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अ, जितना भी इसका वर्क उस लाइन का लास्ट लाइन का डेटा है वो इसमें मूव करेगा। फिर हम इसमें ls अंडरस्कोर sum फिर से मॉडिफाई करेंगे इसको, MENG, सिर्फ MENG फील्ड को इज इक्वल टू LV अंडरस्कोर sum। तो इसमें जो हमको फाइनल में मिला है समेशन, वो हम इसमें पास करेंगे। फिर अपेंड ls sum टू LT sum। उसके बाद हमको क्लियर करना होता है, इट इज मैंडेटरी टू क्लियर द वर्क एरिया एंड दिस वेरिएबल जिसमें हम समेशन कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है। अगर इसको क्लियर नहीं करेंगे आप, तो नेक्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें यही वो वैल्यू कैलकुलेट करके प्लस करते जाएगा जो 01 डॉक्यूमेंट का था। तो दैट इज नेसेसरी टू क्लियर इट इज दिस वन ऑल्सो, LV sum। LVMNG, okay, sorry। यार ठीक है, तो यहाँ पे हमने, तो अभी हम डायरेक्टली डीबग में देखते हैं कैसे चलता है ये। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट